ठीक है. So, hello everyone. I am Tushar Khitan. Welcome to the webinar of Small Cases on Trustline. First of all, I hope all of you are safe and healthy. In these times, we need to take as many precautions as we can, and apart from it, do our regular work. So, this webinar is basically for all our Trustline clients who invest in the market with us and say we have a new way of investing where maybe new investors or old investors, experienced investors or newbie investors can invest easily in the market using small cases. So I believe every one of you might have been investing in the market, say from long ago. Say someone might have started just after the lockdown, or someone might be investing from 10 years. But what happens is that sometimes we as investors, we exactly don't know okay, which stock should I buy, which stock should I do not buy, what is good stock for me, when should I buy, when should I exit. So these all questions we generally are unable to answer. Some of us, when say who can research or who know how to research, they can do it. But say all other people, they find it difficult to research or they find it difficult to choose stocks. So we have small cases. Earlier, before small cases, basically, we had two options to invest in the stock markets. One is through direct equity, like you can buy stock and you can sell stocks. The other option is, say, mutual funds, where you give your money to AMC, where a fund manager handles your fund and he takes care of it and you don't have to worry about it. So then we realized that we need another concept or another instrument where people can easily invest, where they have the opportunity to invest in stocks, plus they have the opportunity to diversify as well. We'll talk more about it in the coming time, where I'll show you certain PDFs, okay, how you can use small cases and everything. So I'll just share my screen. Just give me a moment. Is this visible? Hello, is this visible? Okay. So, okay. So let's begin. What exactly are small cases on Trustline? So basically, small cases are ready-made basket of stocks or ETFs that represent a particular idea, theme, or a strategy. Say if now you want to invest in certain stock, how do you do it? Either you research it by yourself or you take someone advice or recommendation. But say if you want to invest in 3-4 stocks, how will you do it? We have an option called small cases. So basically, as I told you, small cases are a ready-made basket of stocks. So say like you buy one stock from your broker account. Here you can buy 5, 6, 8 stocks. All these stocks are clubbed in a basket. And these are represented by an idea, theme, or a strategy. So say, for example, I like a concept called electric vehicles. I'm sure that after a couple of years or after 3-4 years, electric vehicles will be the future in India. So I believe I can invest in those companies which will benefit by the growth of electric vehicles. But the question is, how do I choose these companies? How do I know which companies would be benefiting from electric vehicles? I need to research and I need to ask different experts. Okay, can you suggest me any companies which might benefit by electric vehicles coming in India? Or say, how can I choose those companies? How do I get more information? So to make all these things easier, we introduce small cases. And say for electric vehicles, we have created one basket called electric mobility. That includes all those companies which are going to benefit from the electric vehicle ecosystem. Say four-wheeler companies, battery companies, auto part companies. All these companies form a part of the auto sector. And there are certain companies which are specifically working towards the electric vehicle ecosystem. So our research team has created a basket from all those companies so that investors like you and me can benefit. If you
are of the opinion that electric vehicles will come in India. So this is a very easy thing. As you can see this, it is a ready-made basket of stocks or ETFs. It is say not a mutual fund, but it is just a collection of stocks. So say you have to buy 5 stocks from your Demat account. How would you do that? You would first buy stock A, some quantity, stock B, some quantity, and C, D, E, so on. What you can easily do here from small cases is all the shares are automatically, these are combined in a basket. You just have to go, see the basket, click buy button and confirm. As soon as you press the confirm button, automatically, even if there are 5 stocks or there are 20 stocks, all the orders will get executed immediately. And you don't have to worry about investing your time, investing say 20 minutes, 30 minutes to invest in 10, 15 different stocks. Second is it is a long-term portfolio that reflects a market theme, idea, investing, say strategy. Say I am of the assumption that I like value investing. Say I am a value investor. I want to invest in companies whose fundamentals are good. But how do I choose these companies? So we have a basket, say value investing, where people can invest in stocks which have good fundamentals. Thirdly, these are created by SEBI licensed professionals. So many of you might be assuming, okay, who might create these baskets? So we have an in-house research team who are registered by SEBI to create and monitor these baskets. Fourth, this is already integrated with your existing broker account. So for investing into small cases, you don't have to open any other account or you don't have to fill any form. One sec. Kushwant is saying no proper audio. Is it fine now? One sec. Mr. Khushwant, I think people can hear. So request you to just say, check your internet connection once. Thank you. I think other people can hear it. So just request you to please check your internet connection once. Thank you. So yes, I was telling integrated with your existing broker account. So for investing into small cases, you don't have to exactly say open another account or fill certain forms, which is the most difficult thing to do. All you have to do is go to trustline.in, log in, enter your credentials, and you will be redirected to the small case page. That's it. No other formalities, no confirmation, nothing. It's as simple as that. Money is taken from your trading account. So say you want to invest in Reliance, for example. What do? You log in to Trustline, you have funds or you add funds, you select Reliance, you click Reliance, you add certain quantities, buy. Same way you can do it with small cases. That it is that simple. And stocks are delivered to your Demat account directly. So as say you invest in Reliance, Reliance is credited to your Demat account. If you invest in a basket, say electric mobility, all the stocks which are there in that particular basket, they would be credited to your Demat account. So you can track them on small cases also, as well as on your Trustline Demat also. So in case guys, anyone has any questions, please do enter it in the chat. So for now, I'll be keeping everyone on mute. Maybe later we can unmute everyone and you can ask questions directly. So who can invest in small cases? So basically small cases are designed for all types of investors. As I told you in the beginning, whether you are a seasoned investor or you are a new investor, small cases are made for everyone. So basically these are very diversified products. So somewhere between single stocks and mutual funds, where you get benefits of both. From single stocks, you get benefit like you can directly invest in stocks. You are the shareholder of the company
And how do you get the benefits which mutual fund people get? So basically mutual fund you invest because those are created by experts and you get diversification, which you get in small cases also. So basically in small cases, you are getting the best of both worlds. So for new investors, firstly, it is easy to understand themes. As I told you, one theme is electric mobility. Secondly, if I say we have one basket called rising rural demand. As you all might know, the population in India is rising, especially in the rural areas. So if population rises, so demand will also rise. So say urban people are demanding something, but in the recent years, we have seen that demand from rural areas have started increasing. If you think, yes, this is true, so you can invest in the rising rural demand small case, which has certain companies which are catering to the rural areas. So you as a retail investor, you don't have to research on anything. You just have to know about it. That's it. It's a great avenue to start your investing journey. As new investors, most of us exactly don't know where to start, because say you might have heard that stock markets are risky, or say you might have heard stock market are only for people with a larger sum of money. That's not true. You can start investing from even as say 150 rupees, 500 rupees, 1000 rupees. That's it. These are less risky and well researched portfolio. As you all know, investing in single stocks might be very risky. Say if you invest in one particular stock and that stock falls, so exactly your whole portfolio falls. Say for example, you invest 1 lakh rupees in a particular stock. That stock falls by 20%. So directly your portfolio is decreased by 20%. But say you invest 1 lakh rupees in a small case which has 10 stocks. Let's assume that 10,000 is divided equally into different stocks. And if say one stock falls down by 20%, then you are losing only 2% of your money, because 20% of 10,000 of one particular stock is only 2,000 rupees. So it is always better to invest in a diversified portfolio. For normal stock investors, it saves time on research and execution. Firstly, you don't have to research anything. We have a research team who has created the basket. And as I told you, if you want to execute 10, 12 different stocks, you have to place the orders one by one, which you can easily do it with small cases. You can invest in ready-made portfolios. You can do multiple trades in just one click by creating your own small case. So this is another additional feature which we have. Guys, I think you guys have posted certain questions. Once this topic finish, I'll answer all of your questions over here. So as I told you, we have one feature called creating your own small case. So what basically this means, you say you do your own research. You want to create your own portfolio. Say you have a list of 5, 7 stocks which you want to invest. So why invest as single stocks when you can invest them as a portfolio? Say I want to create a certain portfolio and I want to name it as the long-term picks. I have say chosen Yes Bank, HDFC Bank, Reliance, ITC, ICICI Bank, Wipro, all these companies. I can assign weights to them and invest. So basically here I am my own fund manager. I'm not relying on anyone's research, but I can create my own basket and invest. So what basically we'll do after this slide ends, I'll take you through the platform demo, where basically you can exactly see how do these small cases work and how can you use your Trustline account to invest in different small cases. So these are basically easily trackable in one platform. So you don't have to track say 10, 15, 20 different stocks. You can track everything at one places only. So before moving to this, I'll just see all the questions. So Mr. Supratim is asking, can it be done through my Trustline broker account? Trustline broker offline. So currently you have to log in on trustline.in, where you will see option of small cases. Once I walk you through the platform, you will come to know. So you can log in from there and you can invest. Very soon this will be coming on your mobile also. But as of now, you can invest only through trustline.in, where you will see option of small cases and then you can invest. So Mr. Jayant is saying ki,
the stocks bought as basket gets mixed with the existing stocks of my portfolio, what is the expense for buying ETF through small case? So basically, I'll tell about the charges right now. So basically, there are no extra charges for using small cases. It is as same as your brokerage. Whatever brokerage you pay for say buying two stocks, same you will pay while buying small cases, no extra charge. So your question is, what is the expense for buying ETFs? So as you all know, ETFs are exchange traded funds. So exchange traded funds are, say, you can say a kind of mutual fund which particular track an index, and these are traded on an exchange. Say you want to invest in Nifty. So how can you invest in Nifty? You can invest in Nifty ETFs, but there are certain AMCs which manage these ETFs. So they have a set of expense ratios. So what are expense ratios? Basically, whenever the company manages these funds, the charges which they charge to the client are known as expense ratios. These are not taken differently, but these are included in your investment only. Say on an average expense ratios, the ETFs have an expense ratio of somewhere between 0.2, 0.3, 0.4%. So if you want to buy ETF, there would be certain expense ratios which the AMC will charge. So you can know about these by say using our help section, where you can see what are the ETFs present. So whatever expense ratio the ETFs will have, accordingly they would be deducted, but you won't have to pay anything extra. Mr. Atanu Das is asking, can you tell me about portfolio? So basically, I'll tell you about the exact portfolio about small cases once I walk you through the platform. So Mr. Supratim is asking, are the baskets already created? Yes. So these baskets are created by a research team, and they keep it updating it from time to time. Plus, as I told you, you also have an option of creating your own basket if you want to invest in certain stocks which you have chosen. Mr. Samrat is asking, sir, if possible, can you show me some small case portfolio? Definitely, after these slides end, I'll walk you through the whole platform. Mr. Jayant is asking, tell it about the expenses and where can I get the details of these expenses deducted? So as I told you, there are no extra charges for investing in small cases through Trustline. It is just the normal brokerage which you pay. Say, let's assume you want to buy 3 stocks, say Reliance, HDFC Bank, and ITC. You will be paying a certain brokerage as and when as you normally pay. In small cases also, if you buy say Reliance, ITC, and HDFC Bank, it is the same brokerage you will pay. No extra charges for using the small case platform or buying or selling any particular small case. Mr. Khushwant is saying, please use Hindi also. Sure. So मैं हिंदी और इंग्लिश बीच बीच में मिक्स करता रहूंगा. In case किसी को और कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी या किसी को हिंदी या इंग्लिश चेंज करना होगा, so please कमेंट में लिख दीजिएगा. Accordingly, I'll change my tone. But for now, I'll use Hindi and English both. So Mr. Samrat is asking, minimum SIP amount of small case portfolio per month and how much stock is in small case. So ये मैं आपको तब बताता हूँ जब आपको प्लेटफॉर्म डेमो आपको दिखाऊंगा, तब आपको बता दूंगा. Mr. Rahul is asking how much brokerage. So as I said, there is no extra charge. आपका जो नॉर्मल ब्रोकरेज है सेम विल अप्लाई हियर. आप 5 स्टॉक अपने नॉर्मल डीमैट से खरीदिए या स्मॉल केस के थ्रू खरीदिए, आपका सेम रहेगा. So many people have this question कि how is small case different from stocks or say or mutual funds? So this as you can see the screen, what is the difference between say single stocks, mutual fund, and PMS? For those who might not know, PMS means portfolio management services. So let's get this one by one. So firstly, direct ownership. When you buy stocks, you are the shareholder of the company. In PMS, you are not. In small cases, as I said, you directly get stocks, so you are the shareholder. In mutual funds, you don't get it because you are buying units of that fund. So you are not directly the shareholder. It's basically you are the unit holder of that fund. These are very cost efficient. As single stocks are very cost efficient, you pay certain fees only when you transact. So if you're buying today, you only pay the brokerage that time. In PMS, they have certain charges up to say 2.5%
the PMS might charge differently, say 1%, 1.5% of your total portfolio. For people who might not know, till some time ago, if you wanted to invest in a PMS, you had to invest at least 25 lakhs. But recently, this amount has increased from 25 lakhs to 50 lakhs. So you have to invest at least 50 lakhs if you want to invest in a PMS. In mutual funds, it is not cost efficient. Most of you might know that in mutual fund, there are certain expense ratios. Say the maximum mutual funds can charge is basically up to 2.5%. On an average, it might vary between 0.8, 1, 1.5%. So which would be deducted every year. And say it is deducted on a daily basis. So these expense ratios are per year. Say 1.5%. If you take an example, if you invest 1 lakh rupees, let's assume a mutual fund hasn't given any returns. तो ऐसा मान लेते हैं कि आप अगर 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका म्यूचुअल फंड ने आपको कोई रिटर्न नहीं दिया है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और वो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, तो वहां पे आपका 1.5% जो कि होता है 1,500 रुपए, वो आपके इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं कि एक बार में, धीरे धीरे करके होगा. और इसकी इंफॉर्मेशन जब आप इन्वेस्ट पहली बार करते हैं या जब आप ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, तब इसकी डिटेल आपको दी रहती है. बट वहीं स्मॉल केसेस में ऐसा कुछ नहीं है. आप आपका नॉर्मल सिर्फ ब्रोकरेज पे करते हैं जब भी आप ट्रांजैक्ट करते हैं. अगर आप 3 महीने तक कुछ ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे. फिर इसके बाद स्मॉल केसेस आर ट्रांसपेरेंट. स्मॉल केसेस में आपको दिखता है कि आप कौन से स्टॉक में कितनी क्वांटिटी पे क्या प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं. अगर उसमें 10 स्टॉक है, आपको वहां पे दिखेगा क्या ये स्टॉक है, उसका ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है. वहीं म्यूचुअल फंड में आपको जाके देखना पड़ता है. उसमें उनका पोर्टफोलियो आई थिंक वंस अ मंथ रिवील होता है, तो वहां पे एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता है कि आप कौन से स्टॉक में क्या क्वांटिटी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को दे देते हैं. तो यहाँ पे आपके पास पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है. फिर यू हैव कंट्रोल ओवर योर. यहाँ पे इन स्मॉल केसेस वी हैव गिवन एन ऑप्शन टू यू वेयर यू कैन से कस्टमाइज योर बास्केट आल्सो. जैसे अगर हमारी रिसर्च टीम ने कोई बास्केट बनाया है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली. मतलब दिस इज नॉट एडवाइजेबल, बट अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू कैन डू दैट. सो यहाँ पे आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. दीज आर वेरी लिक्विड. आप स्मॉल केसेस को एज स्टॉक्स ही खरीद सकते हैं. कभी भी खरीदिए, कभी भी बेचिए. मार्केट आज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपको आज खरीद के मे बी 1 साल तक होल्ड करना है, वरना आपको एग्जिट लोड्स लगेंगे जैसा कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगते हैं. आप आज खरीदिए, आप कल भी बेचिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट एज सेड, स्मॉल केसेस ज्यादा बेहतर तब काम करते हैं जब वो लॉन्ग टर्म में के लिए आप उनको रखते हैं. स्मॉल केसेस में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में भी मिलता है, आपको पीएमएस में भी मिलता है, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर आपका पैसा कहीं डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस वो कौन से आइडिया स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. जैसे मैं अगर आपको बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो आप भी समझ सकते हैं उसको कि हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आ सकता है फ्यूचर में. मैं अगर 100 लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा तो मे बी 70-80 लोग बोलेंगे यस इट विल कम. तो ये चीज आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आपको इसके लिए एक एक्सपर्ट रिसर्चर होने की कोई जरूरत नहीं है. आप एक नॉर्मल, अगर आपको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसके बेसिस पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड लास्ट पॉइंट, दिस इज बैक्ड बाय रिसर्च, जो कि पीएमएस भी है, म्यूचुअल फंड भी है, कि हाँ, एक एक्सपर्ट रिसर्च टीम आपका पोर्टफोलियो बना रही है. So I hope this is clear till now. The small cases as compared to different instruments, how are small cases better? So Mr. Manoj had this question: what is the main difference between small case and mutual fund? I hope इसके ये slide के बाद आपका ये question हट गया होगा. Mr. Jayant Singh, I have noticed that the existing stock in Trustline portfolio gets mixed up with the small case stock. For example, if I have 10 HDFC shares and through some small case basket also contain 2 HDFC shares, then it get mixed with the earlier stocks and now it will show as 12 HDFC shares. So I agree, ऐसा होता है. Just give me a moment. आई एग्री, ऐसा होता है क्योंकि आप जब स्मॉल केस से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो आपके स्टॉक्स जो है आपके डीमैट अकाउंट में ही आ रहे हैं। तो अगर आपने मान लीजिए 10 HDFC बैंक के शेयर में इन्वेस्ट किया है, आप स्मॉल केस के थ्रू और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन वहां पे नहीं दिखता है कि अच्छा कौन सा स्मॉल केस है या क्या है, आपको दिखते हैं 15 HDFC के शेयर। बट यस, वेरी सून आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि आपने डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट से कौन से शेयर्स खरीदे हैं एंड आपने स्मॉल केस के थ्रू कौन से शेयर्स खरीदे हैं, ताकि आपको उसमें डिफरेंस पता चल जाए। बट आपने जो शेयर्स स्मॉल केस के थ्रू खरीदे हैं, आप वो डायरेक्टली स्मॉल केस प्लेटफॉर्म पे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। guys, I see few people have raised their hands, तो एक बार ये हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद maybe we can have a conversation one to one. I hope Mr. Jain, this resolves your query. जब मैं आपको प्लेटफॉर्म डेमो दिखाऊंगा, so maybe we can discuss more on that. So what are the types of small cases? तो सबसे पहला आता है एसेट एलोकेशन, या तो इसको मैं आपको प्लेटफॉर्म डेमो में ही आपको दिखा देता हूँ। So basically यहाँ पे we had different kinds of small cases. What I'll do is I'll directly take you through the platform and there you can see. So अभी तक guys किसी को और कोई क्वेश्चन, कुछ क्लैरिफिकेशन, एनीवन? जिसको भी रहेगा डायरेक्टली आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। So now what I'll do is I'll share my screen and take you through the platform. Yes. So this screen is audible. Sorry, this screen is visible. Okay. So ये स्क्रीन तो आप लोगों ने बहुत बार देखा ही होगा, जो कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमेशा यहाँ पे आते हैं। तो ये जैसे इसका होम पेज है, आप स्मॉल केसेस कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप लॉग इन ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जाके आप ये स्मॉल केस पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको आपके लॉगिन पेज पे ले जाया जाएगा, जहां आपको आपके क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे एंड आप स्मॉल केस पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। या आप सर्विसेज में जा सकते हैं, आप वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हैं और यहाँ आप स्मॉल केसेस देख सकते हैं। आप एक्सप्लोर मोर पे क्लिक कर सकते हैं, जहां आपको और डिटेल्स आपको मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे आपको स्मॉल केसेस के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी मिल जाएगी। स्मॉल केसेस आर पोर्टफोलियो स्टॉक्स और ETF weighted intelligently to track an idea, theme, strategy or objective. Here you always stay in control with small cases. आपको पता है एग्जैक्टली आप कहाँ कितना पैसा डाल रहे हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एंड एक और एडवांटेज ये है कि आप जो भी स्मॉल केस पे इन्वेस्ट करते हैं, आप क्योंकि डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी जब भी डिविडेंड अनाउंस करती है, सो उसका डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो जब आप लॉग इन करते हैं, यू आर रीडायरेक्टेड हियर। सो दिस इज बेसिकली द डिस्कवर पेज। यहाँ से आप अपने सारे स्मॉल केसेस आप डिस्कवर कर सकते हैं। दिस इज द डैशबोर्ड। ये इन्वेस्टिंग इनसाइट्स है कि जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं, आप किस चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मे बी सो कि आपको डिफिकल्टी ना हो। जैसे इक्विटी एंड गोल्ड हमारा स्मॉल केस है, टॉप 100 स्टॉक्स, इंश्योरेंस ट्रैकर, फार्मा ट्रैकर। और आप जब भी कोई स्मॉल केस बाय कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूज आपको यहाँ दिख जाती है। अभी क्योंकि हमने कुछ बाय नहीं किया है, तो न्यूज दिख नहीं रही है। सेकेंडली, आपको कुछ भी अगर डाउट क्लैरिफिकेशन है, सो वी हैव आवर हेल्प सेक्शन ओवर हियर, जहां आपको मोर डिटेल मिलेगी। या आपको यहाँ पे ये ईमेल आईडी दिख रही है helpdesk@trustline.in, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। तो helpdesk@trustline.in या help@smallcase.com, आप कहीं पे भी ईमेल करके आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। या नीचे आपको ये चैट आइकन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप करके हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। ठीक है, so अभी we'll just come on the discover page now. So this is basically the discover page. यहाँ पे आपको अपना अगर स्मॉल केस चूज करना है, तो आप अपना स्मॉल केस चूज भी कर सकते हैं। Like find your small case. So basically we have a small case called all weather investing. This is one of the most bought small cases ever. So this basically, this small case, what it does is it helps you
diversify across different asset classes. So this is a combination of 3 different asset classes. सबसे पहला इक्विटी जैसे स्टॉक्स, दूसरा फिक्स्ड इनकम एंड तीसरा गोल्ड. तो ये तीनों का डाइवर्सिफिकेशन बना के ऑल वेदर इन्वेस्टिंग बना है. एंड आई बिलीव इस टाइप का प्रोडक्ट अभी और कोई दूसरा नहीं है. सो इक्विटी, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, इक्विटी आपको हेल्प करता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऊपर जाए, योर मनी ग्रोज. व्हाट फिक्स्ड इनकम डज इज बेसिकली कि आपको जैसे बैंक एफडी में आपको रेगुलर रिटर्न्स आपको मिलते रहते हैं, रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है. सो एफडी आपको रेगुलर डिविडेंड्स देता है. एंड थर्ड इज गोल्ड. तो गोल्ड बेसिकली एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन लेयर. कि आपने देखा होगा जब भी मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड की प्राइस थोड़ी बहुत गिरती है, या मार्केट गिरता है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि मार्केट और गोल्ड में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है. तो गोल्ड आपका प्रोटेक्ट करता है. तो बीच में आई जस्ट शेयर एन इंसिडेंट कि अभी रिसेंट में जब मार्च अप्रैल में निफ्टी फेल डाउन बाय से अराउंड 4% और 4.5%, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग वाज अप बाय अराउंड 1%. दिस इज ओनली बिकॉज इट हैड गोल्ड इन इट. एंड इसमें जो इक्विटी कंपोनेंट है, तो बेसिकली इसमें जो एनएससी की टॉप की 100 कंपनीज है, निफ्टी की कंपनीज, निफ्टी टॉप 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, तो इसमें वो इंक्लूडेड है. सो यू कैन इजीली इन्वेस्ट ओवर हियर ऑल वेदर इन्वेस्टिंग. देन से आपको बहुत कम रिस्क नहीं लेना है. आप यू आर लाइक कि नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ. सो आप आगे इसमें देख सकते हैं. These are smart beta small cases. So smart beta basically एक strategy है जो कि निफ्टी जो अमाउंट का रिस्क लेता है, इन द सेम रिस्क स्मार्ट बीटा ट्राइज टू एंश्योर कि आपको निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स मिले. तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्मार्ट बीटास, लो रिस्क स्मार्ट बीटा, क्वालिटी स्मार्ट बीटा. बट इफ यू वांट कि नहीं, यू कैन टेक मोर रिस्क, आप यहाँ आके देख सकते हैं कि जो स्मॉल केसेस इन्वेस्टर्स में पॉपुलर हैं, या जो करेंटली इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो टाइम टेस्टेड एंड एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजीज है, वो आप देख सकते हैं. या आप खुद का बास्केट भी आप बना सकते हैं. तो यहाँ से भी जाके आप बना सकते हैं, या आप यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी क्रिएट बता रहा हूँ. जैसे मुझे बास्केट बनाना है मेरा लॉन्ग टर्म पिक्स. 3 to 5 years. सो आप लोग को अगर कोई शेयर पसंद है तो प्लीज उसको कमेंट करके लिख दीजिए. सो मैं वही शेयर्स को ऐड कर दूंगा. तब तक मुझे जो पसंद है मैं वो डाल देता हूँ. तो मैंने अपना ये एडिट कर दिया है. एंड आपको अगर कुछ इमेज चाहिए, सो यू कैन ऐड योर इमेज आल्सो ओवर हियर. जैसे मिस्टर सम्राट लिख रहे हैं डीमार्ट, तो डीमार्ट मैंने डाल दिया. फिर उन्होंने लिखा रिलायंस, मैं रिलायंस भी डाल देता हूँ. IRCTC, एंड से एक और मैं डाल देता हूँ HDFC बैंक. ये चारों मैंने डाल दिया. सो अभी इसका वेट इक्वल असाइंड है. सो बाय वेट आई मीन कि आप जो भी पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका टोटल जो स्ट्रक्चर है वो मिला के 100 होता है. तो यहाँ पे मतलब आपने 25% अप्रोक्सीमेटली HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया है, 25% IRCTC, 25% रिलायंस एंड 25% एवेन्यू सुपरमार्केट. आपको इसका परसेंटेज कम ज्यादा करना है तो आप ये भी कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली दूसरा परसेंटेज चेंज होगा. या तो आप इसको मार्केट कैप के हिसाब से भी कर सकते हैं. जैसे आपको पता होगा कि रिलायंस का मार्केट कैप से सबसे ज्यादा है, तो आप मार्केट कैप के हिसाब से करेंगे तो वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा. एंड आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो आप वेट सिलेक्ट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग हो. आपको इक्वी वेटेड करना है तो 25% अगर आप करना चाहेंगे तो आपका ये अमाउंट 10 आ गया. या अगर आपको चाहिए कि नहीं, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइडेड है, HDFC बैंक के मुझे 4 शेयर लेना है, 5 शेयर, IRCTC का 3, रिलायंस का 1 और एवेन्यू सुपरमार्केट का 3. सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि हाँ जो आपने सिलेक्ट किया है उसके जो सिमिलर स्टॉक्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, उसमें से कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं. जैसे हमने 4 सेगमेंट ऐड किया है तो हमको ये चारों दिख गया है, आप सिमिलर स्टॉक्स चूज कर सकते हैं. और जो भी आप बास्केट बनाना चाहते हैं आप उसका पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस विद निफ्टी आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे. ये अच्छा आपका बास्केट कैसा परफॉर्म किया रहता है वर्सेस निफ्टी कैसा परफॉर्म किया रहता है, तो ये आपको दिख जाता है. एंड से आपको इसको इन्वेस्ट करना है, बट आपको आज नहीं, आपको 3 दिन बाद करना है. सो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं. ये आप वॉच लिस्ट में जाएंगे, ड्राफ्ट में जाएंगे, आपको दिख जाएगा.
फिर आपको उसको कस्टमाइज करना है, यहाँ से आप उसको एडिट करिए या आप अपना ड्राफ्ट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिखेगा कि आपने जब से इसको सेव किया है तब से आपका बास्केट ने कितना रिटर्न आपको जनरेट करा है। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर जो कि आपको अगर आपका खुद का बास्केट बनाना है, अगर आप खुद इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप स्मॉल केस का ये फीचर यूज करके कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो अगर आप जो 5 स्टॉक अगर आप नॉर्मली आपके डीमैट से ले रहे हैं वो आप यहाँ से ले लीजिए, वो शेयर्स फिर भी आपके डीमैट में ही जाएंगे। सो लेट्स वॉक यू थ्रू द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग या जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के स्मॉल केसेस है, इसके आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट सिटीज, राइजिंग रूरल डिमांड, या जो लॉन्ग टर्म स्मॉल केसेस है, डिविडेंड एंड इनकम। बहुत लोग आप में से होंगे जिनको प्राइस रिटर्न के साथ डिविडेंड रिटर्न भी चाहिए, तो ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जा सकते हैं ऑल स्मॉल केसेस पे। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ से आप आपका स्मॉल केस चूज कर सकते हैं अलग अलग फिल्टर्स डाल के। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको अलग अलग बास्केट दिखेंगे। तो आप आपका बास्केट अमाउंट वाइज चूज कर सकते हैं। आपको अगर 5,000 से नीचे इन्वेस्ट करना है, 5 से 10, 10 से 20 या 20,000 के ऊपर, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ ये टिक मार्क कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ वही बास्केट दिखाया जाएंगे। फिर देयर आर मोर फिल्टर्स। तो जैसे मैं आपको जब स्लाइड में आपको बता रहा था कौन कौन से टाइप के स्मॉल केसेस हैं, तो सबसे पहला है बेसिकली ईटीएफ स्मॉल केसेस। तो ईटीएफ जैसे मैंने आपको बताया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो ईटीएफ स्मॉल केसेस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो स्मॉल केसेस में सिर्फ ईटीएफ है, जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, इक्विटी एंड गोल्ड, टॉप 100 स्टॉक्स, ये आपको सीएजीआर, इंडेक्स वैल्यू मिनिमम अमाउंट क्या है, अगर आपको मे भी नहीं पता हो तो मैं आपको कुछ देर में वो भी आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप फिल्टर्स ऑप्शन कैसे यूज करते हैं आपके लिए सही बास्केट चूज करने के लिए। स्मार्ट बीटा, जैसे मैंने आपको बताया, स्मार्ट बीटा स्मॉल केस अगर आपको चूज करना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। थीमेटिक मतलब जो कोई एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, या स्पेशलिटी केमिकल्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, ब्रांड वैल्यू। जैसे आपको भी पता होगा आजकल बहुत लोग जो है वो पर्टिकुलरली ब्रांड फोकस्ड हैं कि हाँ उनको पर्टिकुलर कोई ब्रांड में ही इन्वेस्ट करना है, वो लोकल नहीं खरीदेंगे। सो हमने इसमें ऐसी कंपनीज डाली है जिनको ऐसे ब्रांड से फर्क पड़ता है, या जो खुद ही ऐसे ब्रांड्स हैं जहां लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सेक्टर ट्रैकर्स, कि जो पर्टिकुलर सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली बहुत लोग बोल रहे थे कि फार्मा ऊपर जाएगा या मे बी एफएमसीजी ऊपर जाएगा। सो आप यहाँ से अलग अलग सेक्टर्स चूज कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं एक पर्टिकुलर सेक्टर अगले कुछ सालों में या अगले कुछ महीनों में ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर है मॉडल बेस्ड, कि कोई एक मॉडल पे बेस्ड है, जैसे ग्रोथ एंड इनकम। कोई कंपनी का कोई पर्टिकुलर 2-3 उनके फीचर्स देख के आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पी लिस्ट हो गया, तो कंपनीज दैट हैव हाई शेयर होल्डिंग फ्रॉम पी फर्म्स। पी फर्म्स बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, dividend aristocrats. So this is basically a small case that has consistently been increasing its dividend for the last 10 years. जैसा मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत लोग होंगे जिनको इन्वेस्ट करने के साथ साथ डिविडेंड्स भी चाहिए, तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एज अ नॉर्मल यूजर आपको एग्जैक्टली में भी पता ना हो कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है, कौन सी कंपनी अच्छी है, तो हमारी रिसर्च टीम ने बास्केट बनाया है। So companies that have increasingly being consistently increasing dividends for the last 10 years. So आपको यहाँ पे एक रिस्क कैटेगरी भी दिखेगा। तो ये हो सकता है मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क और हाई रिस्क। तो आप अकॉर्डिंगली आप उसको चूज भी कर सकते हैं। आपको पीछे रिस्क दिखा होगा, वापस जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना गाइस सबको? अगर आ रही है तो प्लीज जस्ट कंफर्म इन द चैट यस करके, थैंक यू। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इंडेक्स वैल्यू क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज इंडेक्स वैल्यू, व्हाट इज सीएजीआर। सो इंडेक्स वैल्यू इज बेसिकली द अमाउंट व्हाट दिस स्मॉल केस हैज जनरेटेड ओवर द लॉन्ग टर्म। तो जब ये स्मॉल केस बना था या जब ये स्मॉल केस का इंसेप्शन हुआ था, इसका इंडेक्स वैल्यू वाज 100। कि जब रिसर्च टीम ने इसको बनाया था तो दिस वाज 100 एंड नाउ फ्रॉम 100 इट हैज मूव्ड टू 255.65। सो मतलब अगर आप इंसेप्शन डेट में इसमें इन्वेस्ट करते 100 रुपए,
So आपके 100 rupees would have turned into 255.65 as of today. This keeps on changing during market hours according to the market movement. उसके बाजू में आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा, जैसे यहाँ 0.51% ग्रीन में है, तो मतलब आज के दिन में आपका ये मार्केट जैसा भी परफॉर्म किया, ये बास्केट आपका 0.51% बढ़ा है. तो यहाँ पे अगर ये रेड होता तो मतलब ये नीचे गया. CAGR, तो आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कि ऑन एन एवरेज ये बास्केट जब से चालू हुआ है, जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, तब से ये हर साल ऑन एन एवरेज 16.39% का आपको ग्रोथ दे रहा है. सो आप अगर इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके डिटेल दिखेंगे. जैसे इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 100, ये 3 मार्च 2014 को ये बास्केट का इंसेप्शन हुआ था. CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तब से लेके हर साल 16.39% का ग्रोथ, और मॉडरेट रिस्क की मतलब ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है, बहुत कम वॉलेटाइल भी नहीं है. आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको चार्ट्स दिखेंगे कि ये बास्केट ने कैसे परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू द इंडेक्स. मैक्स ग्राफ मतलब जब से चालू हुआ है तब से 1 मंथ रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं कि 100 से कैसा परफॉर्म हुआ है. यहाँ पे जैसे ये डिविडेंड अरिस्टोक्रेट, अगर आप 100 इन्वेस्ट करते एक महीने पहले, सो ये इट वुड हैव टर्न इनटू 111, मतलब आप 11% का रिटर्न कमाते. वहीं निफ्टी 100 में आप 9% का रिटर्न कमाते. 6 मंथ्स, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, ऐसे आप देख सकते हैं. आपको रेशियोज कंपेयर करने हैं तो आप वो भी कंपेयर कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा एक और इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि नहीं मुझे नंबर्स भी देखने हैं, वो भी कर सकते हैं. आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ निफ्टी चेंज कर सकते हैं. जैसे निफ्टी अगर आप देखें पिछले 2 साल में निफ्टी 6% गिरा है, बट ये बास्केट 4% बढ़ा है. वहीं आप इसको डिफरेंट एसेट क्लासेस से आप कंपेयर कर सकते हैं, इन्फ्लेशन, फिक्स डिपॉजिट, निफ्टी. तो ये सब आप कर सकते हैं, और ये सब आप हर स्मॉल केसेस के साथ कर सकते हैं. प्लस आपके पास यहाँ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप ये बास्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको और ही बास्केट में पता रहे. अगर आपको और डिटेल चाहिए तो हमने इसके बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है, आप उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं. प्लस मेथोडोलॉजी से बहुत लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि अच्छा आपने बास्केट बनाया है, तो वी एज इन्वेस्टर शुड नो आपने कैसे बनाया है. तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल मिल जाएगा, ये बास्केट कैसे बनाए, इसमें रिसर्च टीम ने क्या किया है, आप स्टॉक स्क्रीन उसमें क्या क्या उन्होंने चूज किया है. इस बास्केट में आप जो भी स्टॉक देखेंगे इक्वली वेटेड है. जैसे कोई कोई बास्केट में हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी रिसर्च टीम उसको डिफरेंट वेट असाइन करती है. जैसे एक कंपनी को मान लीजिए 15% किया, एक कंपनी को 7% किया. हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग, तो क्या होता है कि मेनी यूजर्स व्हाट दे वांट इज कि उनको इसके बारे में पता नहीं होता है. प्लस जो हमारी रिसर्च टीम है वो सारे बास्केट्स को बैक टेस्ट करती है. मे बी जैसे ये बास्केट अगर आप एक महीने पहले ट्रस्ट लाइन पे आपको दिख रहा है, तो हमारी रिसर्च टीम ने क्या किया है, इसको मे बी 3 साल पहले से बैक टेस्ट किया है. तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि पिछले 3 सालों में ये बास्केट कैसा परफॉर्म किया रहता है, एंड उसके बेसिस पे आप मे बी अपना डिसीजन ले पाए. बट दिस डजंट मीन कि आपको जैसे बैक टेस्टिंग में या जो पास्ट परफॉर्मेंस जैसा है फ्यूचर में भी आपको वैसा मिलेगा, बट मे बी उसके वजह से आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए. फिर रीबैलेंस, सो व्हाट बेसिकली रीबैलेंस मीन्स कि आप मान लीजिए आप इस बास्केट में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या, उसको ये बास्केट को कौन चेंज करेगा या ये बास्केट को कौन मॉनिटर करेगा. सो यहाँ पे आता है एक टर्म कॉल्ड रीबैलेंस. So rebalancing is basically adjusting the portfolio according to the idea or strategy you have invested in. So हमारी रिसर्च टीम क्या करती है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी, हर 3 महीने पे, हर महीने या हर 1 साल में जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग ये बास्केट को वो रीबैलेंस करते हैं. मे बी मान लीजिए अभी 10 स्टॉक है, उसमें से कोई 10 स्टॉक में से वो 3 स्टॉक को निकालेंगे एंड मे बी दूसरे 2 न्यू स्टॉक डालेंगे. एंड ये सब कोई भी चीजें आपके परमिशन के बिना नहीं होती है. जब भी रीबैलेंस आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे ये बास्केट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये बास्केट का रीबैलेंस पीरियड इज 1 ईयर. लास्ट रीबैलेंस हुआ था 13 सितंबर 19, अगला होगा 13 सितंबर 2020. तो इसका रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी 1 ईयर क्यों है, क्योंकि जनरली डिविडेंड्स जो अनाउंस होते हैं वो साल में कंपनीज एक बार करती है. और ये बास्केट का प्राइमरी क्राइटेरिया इज कंपनीज दैट हैव कंसिस्टेंटली बीन इंक्रीजिंग डिविडेंड्स फॉर द लास्ट 10 इयर्स. तो 13 सितंबर को आपको रीबैलेंस का नोटिफिकेशन आएगा अगर आपने ये बास्केट में इन्वेस्ट किया है तो.
नोटिफिकेशन भी आएगा, ईमेल भी आएगा कि हमारी की रिसर्च टीम ने ये चेंजेस बोले हैं, these stocks needs to be added, these stocks needs to be removed. You just need to give your consent. आपको वहां पे जाके एक बार कंफर्म करना है, that's it, and सारा चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है अभी, बाद में इन्वेस्ट करना है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा. सिमिलरली कोई दूसरा बास्केट देख लेते हैं, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स देख लेते हैं. तो यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स में आपको दिखेगा कि ये बास्केट किस बारे में है, और डिटेल सेम आपको चार्ट वार्ट के बारे में बताया. फिर एक और चीज है यहाँ पे फैक्ट शीट, कि अगर आपको थोड़ा और डिटेल चाहिए ये बास्केट के बारे में, तो स्मॉल केस रैशनल हो गया, हमारे रिसर्च टीम के डिटेल्स हो गए, पूरा मेथोडोलॉजी हो गया, रेशियोज हो गए, कौन से कैप में कितना पैसा गया है, लार्ज कैप में इसमें कितना गया है, मिड कैप में कितना गया है, स्मॉल कैप में कितना गया है, और चार्ट्स, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं. फिर वहीं अगर आप इसको आप स्टॉक्स एंड वेट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है लास्ट 13 मार्च को हुआ था, अगला रिव्यू 13 जून को होगा, विच इज आफ्टर 5 डेज. तो 5 दिन बाद अगर आप ये पोर्टफोलियो देखेंगे, आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखे, और ये अमाउंट भी आपको कुछ आपको वेरी होके दिखे. तो जैसे अभी इसमें ये सारे स्टॉक्स हैं, तो ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है, तो बेसिकली आरती इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, ये अभी ये बास्केट का 9.61% पोर्टफोलियो होल्ड करती है. मतलब अगर आप 100 रुपए डालेंगे ये बास्केट में एग्जाम्पल के लिए, तो करीब 9.60 आरती इंडस्ट्रीज में जाएंगे. सेम बाकी जो स्टॉक्स हैं. प्लस अगर आपको ये सारे स्टॉक्स की थोड़ी और डिटेल चाहिए, तो आप ये बास्केट पे क्लिक कर सकते हैं. आपको ये बास्केट के बारे में डिटेल दिख जाएगी कि ये स्टॉक की डिटेल चाहिए, तो आपको दिख जाएगा कि उसका प्राइस क्या है, एक महीने में क्या रिटर्न है. अकॉर्डिंगली आप यहाँ देख सकते हैं हर स्टॉक का. फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट है बेसिकली, या कौन सा सेक्टर है, उसको आप देख सकते हैं. एंड यहाँ इसके बारे में आपको ये सारे स्टॉक्स के रिलेटेड आपको न्यूज आपको दिखेगी, एंड अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक और फीचर हमने दिया है कस्टमाइज स्मॉल कीज. मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ये आपको कांसाई नेरोलैक पेंट्स नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आपको इसको चेंज करना है, सो आप इसको कस्टमाइज करके आप कर सकते हैं. बट ये आपको बता दूं कि जब भी आप कोई बास्केट कस्टमाइज करते हैं, तो जब आप कस्टमाइज कर रहे हैं, सो दैट इज ट्रीटेड एज योर ओन बास्केट. तो इसमें आपको कभी भी रीबैलेंस नोटिफिकेशन नहीं आएंगे. तो अगर आप यहाँ से बास्केट कस्टमाइज करते हैं, तो आपको कोई रीबैलेंस की नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, क्योंकि दिस इज ट्रीटेड एज योर ओन कस्टमाइज बास्केट. मतलब ये आपने बनाया है, तो जो बास्केट आप बनाते हैं उसके आपको रीबैलेंस के अपडेट्स नहीं आते. तो एग्जांपल के लिए इसको देख लेते हैं. अगर आपको कस्टमाइज करना है, आपको एक कांसाई नेरोलैक नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ गया, इसको क्रॉस कर दिया, मेरा अमाउंट कम हो गया. आप इसको ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, या आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आप ये पेज जो देख रहे होंगे, आपको जो मैंने क्रिएटेड पेज दिखाया था, सेम उसकी तरह हो गया. तो मैं बैक करता हूँ, मुझे सेव नहीं करना है अभी. मान लीजिए मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है. सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि आप जिसे प्लेटफॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं. आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको अलग अलग चीजें दिखेगी. आपको हेल्प चाहिए कुछ, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं. प्लस यहाँ पे एक दो चीजें और है कि आप सर्च कर सकते हैं. आपको जैसे कोई पर्टिकुलर स्टॉक सर्च करना है, मुझे जैसे इन्फोसिस पसंद है, जैसे आपको यहाँ पे इन्फोसिस दिख भी रहा है, मैंने टाइप किया इन्फी, तो इन्फोसिस कौन कौन से बास्केट में है वो भी आपको दिख जाएगा. आपको बास्केट पे क्लिक कर सकते हैं, या आपको अगर कोई बास्केट का नाम पता है, जैसे एक बास्केट है, मान लीजिए ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, GREAT, तो ये बास्केट दिख जाएगा. आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं वहीं से. तो यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि आपको आपका वॉच लिस्टेड है, वो भी देखना है. फिर इसमें हमने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप इसको रिस्क से भी फिल्टर कर सकते हैं. जैसे लो रिस्क, कुछ लोग रहते हैं कि जो बोलते हैं नहीं मुझे हाई रिस्क नहीं लेना, आई वांट टू स्टार्ट विद लो रिस्क. तो लो रिस्क का मतलब ये नहीं है आपका जो भी है आपको इसमें लॉस नहीं हो सकता, बट लो रिस्क का मतलब कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम है, मार्केट बहुत ज्यादा, इसमें आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी. सेम अगर आप मॉडरेट देखें, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये सारे बास्केट मॉडरेट रिस्क में, इसमें बहुत कम मूवमेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है. एंड यही हाई रिस्क आपको यहाँ से आप चूज कर सकते हैं. सो मतलब ऐसा आपने सुना ही होगा कि जितना ज्यादा आप रिस्क लें, उतना ज्यादा आप रिटर्न कमा सकते हैं. बट तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर आप जैसे में भी हाई रिस्क लेते हैं,
तो आप हाई रिस्क कमा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप हाई रिस्क लेंगे तो ही आप हाई रिटर्न कमा सकते हैं। आप यहाँ से, क्योंकि मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ कि जैसे आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि जो लेटेस्ट बास्केट है वो सबसे ऊपर आ जाए, या जो रिसेंटली रीबैलेंस हुआ है वो सबसे ऊपर आ जाए, या पॉपुलैरिटी के हिसाब से, पॉपुलैरिटी मतलब जो ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इसको हाई टू लो CAGR से भी सॉर्ट कर सकते हैं कि आज तक जब से बास्केट चालू हुआ था तब से कौन से बास्केट ने कितना ज्यादा CAGR दिया है। सो आपको ये भी दिखेगा, इससे में भी आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प हो। आप इसको लो से भी कर सकते हैं, आप 1 ईयर रिटर्न हाई टू लो भी कर सकते हैं। जैसे फार्मा पिछले एक साल में 42% रिटर्न दिया है और ये मॉडरेट रिस्क है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न कमाना है और इफ यू वांट टू अर्न हाई रिटर्न्स यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली इन हाई रिस्क स्मॉल केसेस। आप अकॉर्डिंगली भी उसको चूज कर सकते हैं। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, ये बास्केट जैसे आपने अगर 6 महीने का देखा कि निफ्टी 100 जो है वो 14% लॉस में है पिछले 6 महीने में, वही ये बास्केट 4% ऊपर है। आप इसको निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो निफ्टी इज 15% डाउन, वही ये बास्केट इज 4% अप, ओनली बिकॉज इट डाइवर्सिफाइज एंड इट हैज गोल्ड इन इट। तो जैसे यहाँ पे आपको इसकी डिटेल देखने को मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड न्यूज। फिर उसके बाद यहाँ से आप 1 मंथ से आप हाई लो से सॉर्ट कर सकते हैं, या अगर आपको चाहिए कि कम अमाउंट से भी आपको चालू करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कम अमाउंट का अभी बास्केट यहाँ पे 149 का, सिमिलरली आप स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेंगे दूसरे। फिर आपको चाहिए आप इसको हाई टू लो भी कर सकते हैं। तो मैं अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से जाता हूँ यहाँ पे, जैसे इंश्योरेंस ट्रैकर ही ले लीजिए, मुझे इसको बाय करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आपको लॉगिन का तो मैंने बताया कि आप ये इसमें आ गए। we'll take few questions अभी, एक मिनट। so Mr. Rohit is saying how can we basically hedge our small cases। तो बेसिकली ये आप इसको आप लॉन्ग टर्म एज अ इन्वेस्टमेंट आप इसको कर रहे हैं कि मे बी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। सो हमारी रिसर्च टीम जो है हर 3 महीने या हर 1 साल में इसको रीबैलेंस करती है। 95% स्मॉल केसेस आर रीबैलेंस एवरी 3 मंथ्स। जैसे अगला रीबैलेंस ही आपको जो दिख रहा है जून 13 को है। तो हर 3 महीने में ये आपको अपडेट मिलते जाएगा। So I hope this answers your question. Can you please provide this video? Definitely, this video is being recorded and we'll share it with you once ready. Mr. Supratim is asking for how long is this webinar? So I'll take 5-7 minutes more. उसके बाद आप लोग को कुछ questions रहेंगे, so you can please feel free to ask me. तो इसको बाय करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना है बाय पे क्लिक करना है। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको वन टाइम करना है या मंथली SIP करना है। आपको यहाँ पे एक और एडवांटेज है कि आप स्मॉल केसेस में आप SIP भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी SIP ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं होती है। जब भी आपका SIP ड्यू रहता है आपको ईमेल और रिमाइंडर नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको उसको सिर्फ क्लिक करके कंफर्म करना पड़ता है एंड आपकी SIP एग्जीक्यूट हो जाती है। तो मैं मान लीजिए SIP में करना चाहता हूँ, मुझे दिख जाता है कि मैं कौन से स्टॉक में कौन से प्राइस पे क्या क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। क्योंकि ये आप मार्केट में कर रहे हैं तो ये प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। यहाँ ये मिनिमम अमाउंट आपको दिख रहा है 7,700। सो ये मिनिमम अमाउंट का मतलब है कि आपको ये बास्केट में जितने भी स्टॉक्स है उसका वेटेज पे और करंट प्राइस के हिसाब से आपको कम से कम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आपको अगर शेयर में इन्वेस्ट करना है तो या तो आपको एक शेयर लेना है या 2 शेयर लेना है। आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स की तरह 1.2 शेयर नहीं ले सकते। तो इसलिए ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे है कि करेंटली ये सारे शेयर्स आपको इस वेटेज पे लेने के लिए और ये करंट प्राइस है आपको इतना अमाउंट करना ही देना ही पड़ेगा। इसको मैं कंफर्म करूंगा तो हो सकता है प्राइस चेंज हो, क्योंकि मार्केट में प्राइस चेंज होती रहती है। इसे नहीं हुआ, बट मुझे इसमें मान लीजिए 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो मैं टाइप किया 15,000। तो ये एग्जैक्ट 15,000 नहीं रहेगा, ये वेट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ताकि आपको जो शेयर की क्वांटिटी है वो आपको प्रॉपर मिले। क्योंकि आपको जैसे 3.9 शेयर नहीं मिल सकते। मैंने कंफर्म किया, ये वेट्स के अकॉर्डिंगली इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। आपने डिटेल देख लिया, आपको जानना है तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे मंथली से पे क्लिक करिए और कंफर्म करिए। सेम आप उसको वन टाइम भी कर सकते थे। ये कैसा पेज आएगा, जैसे ही आपका यहाँ पे ये सर्कल कंप्लीट हुआ मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपके 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो गया। हमको क्या लगा, सिर्फ 2 क्लिक। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, आपका पूरा ऑर्डर डिटेल्स आपको दिखेगा कि अच्छा ये शेयर इतने प्राइस पे बाय हुआ।
फिर आपको अगर डिटेल देखना है तो आप इन्वेस्टमेंट्स में जाइए, या आपको दिख रहा है ये बास्केट में हमने इन्वेस्ट किया है, उस पर क्लिक करिए। आपको डिटेल दिखेगा कि आपने कितना पैसा डाला है, अभी उसका वैल्यू क्या है, और आपका करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट टोटल रिटर्न्स, अभी का रिटर्न्स। अगर आपने मान लीजिए कुछ एग्जिट किया है तो ये चेंज हो जाता है, प्लस आपको टोटल डिविडेंड कितना मिला। ये एक और एडिशनल फीचर है कि आपको जो भी डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे, टोटल आपको डिटेल यहाँ दिख जाएगा। आपको दिख जाता है यहाँ पे कि अच्छा कौन सी कंपनी में कितना पैसा है, अभी उसका एग्जैक्ट रिटर्न क्या चल रहा है। आपको मान लीजिए अगर एसआईपी एडिट करनी है तो आप कर सकते हैं। आप नेक्स्ट एसआईपी डेट मुझे चाहिए कि नहीं, मेरा जून में 11 से कटे, और ये आप 4 फ्रीक में, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली, मुझे हर हफ्ते आपको इन्वेस्ट करना है। मिनिमम एसआईपी 7,700। आप उसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे 10,000 करना है। इसने आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उससे आपको कोई चेंज नहीं होगा। सेव से आपको अगला जून 11 को आपको नोटिफिकेशन और ईमेल आ जाएगा। फिर ये बास्केट आप मैनेज भी कर सकते हैं, आपको चाहिए कि नहीं। इसमें जैसे ये तो इंश्योरेंस ट्रैकर है, आप यहाँ पे कोई भी बास्केट आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए डाल दिया एचडीएफसी बैंक, एक जस्ट फॉर एग्जांपल। मतलब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, बट ये जैसे जो इंश्योरेंस बास्केट है तो आप इसमें इंश्योरेंस के साथ ही रहें, ये डाल सकते हैं और आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये बात आपके बास्केट में ऐड हो जाएगा। बस गाइस, दिस इज ऑलमोस्ट ओवर, लास्ट 2-3 मिनट आपको ऑलमोस्ट मैंने सारे फीचर्स बता दिए हैं इसके। प्लस एक चीज और कि आपको बस एग्जिट करना है तो क्या करना है। एग्जिट करना है तो आप इसको कंप्लीट एग्जिट भी कर सकते हैं, पार्शियल एग्जिट भी कर सकते हैं। पार्शियल एग्जिट तभी होता है जब आपने बास्केट में थोड़ा ज्यादा पैसा डाला है। यहाँ पे आप ऑर्डर रिव्यू करेंगे, एग्जिट क्लिक करेंगे, कंफर्म, आपका बास्केट एग्जिट हो चुका है। दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मल्टीपल बास्केट्स में भी आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, आपको सारे रिटर्न की डिटेल आपको दिख जाएंगे। दैट्स इट, या बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स को मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो दे कैन यूज स्मॉल केसेस। तो आप जैसे ट्रस्ट लाइन से आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं, आप स्मॉल केसेस खरीदिए, आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, प्लस आप एज अ पोर्टफोलियो आप उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखेगा। फिर एक दो क्वेश्चंस वील टेक एंड देन आई विल फिनिश इट ऑफ। फिर किसी को क्वेश्चन रहेंगे, यू कैन। Sir, I'm new in share market and don't have any knowledge about stock. I get stuck into many shares and all my investments get stuck into the market. Could you help me getting out of it? Or would you suggest me some good stocks which I could trade? So जैसे मिस्टर अक्षत ने लिखा कि वो स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर पाते, पर मिस्टर अक्षत आई बिलीव कि आप कोई आइडिया या स्ट्रैटेजी आप इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे, या अगर आपको कुछ इशू है आप यहाँ से आपका खुद का स्मॉल केस चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको जैसे कोई भी आइडिया पसंद हो, जैसे आपने थीमेटिक किया, आप यहाँ से आपका खुद का बास्केट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू हैं तो मे भी आप लो रिस्क से चालू कर सकते हैं, कि आप देख सकते हैं अच्छा लो रिस्क में कौन से बास्केट्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। फिर मिस्टर सम्राट is asking, can you please show 149 small case? Okay, I'll show you. So this is equity and gold. So आप इक्विटी एंड गोल्ड में आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मतलब इसमें ETF में इन्वेस्ट हो रहा है निपॉन इंडिया गोल्ड 20 एंड निपॉन इंडिया निफ्टी 20। सो यहाँ से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, सो यू कैन ऐड इट टू देयर वॉच लिस्ट आल्सो। फिर मिस्टर खुशवंत इज सेइंग कि आई डिडंट रिसीव प्रॉपर ऑडियो। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आपको इसका वीडियो मिल जाएगा जैसे हम इसको हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे। हाउ कैन आई गेट माई ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड ID पासवर्ड? सो आप यहाँ पे इनसे आप यहाँ पे आपका ईमेल कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं, देन यू विल गेट ऑल योर डिटेल्स। So this is how basically you can use the small case platform and invest very easily. So I hope this was helpful for you guys. In case you want to add
something, if you want to say something, you can say. So आपको अगर किसी को भी कुछ question पूछना है, so you just raise your hand. I'll unmute you guys if anyone has any questions. So people who want to leave या जिनको जाना है, thank you so much guys for attending this webinar. I hope this was helpful and maybe you can invest very easily in the markets. पिछले एक हफ्ते में अगर आपने देखा होगा मार्केट्स अच्छा खासा रिकवर हुए हैं, so आप स्मॉल केसेस में बहुत इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट बढ़ गया तो आप मे बी नहीं मार्केट गिरने के लिए रुकेंगे, क्योंकि स्मॉल केसेस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है. सो आप थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो भी गया तो उससे आपका इन्वेस्टमेंट फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आपने अगर आज सोचा है कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो आपको आज इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, वरना आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका वो डिले होते जाएगा. सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल. थैंक यू सो मच गाइस. Now we are open to question and answers. People who have work who want to leave, thank you so much for attending. So जिसका भी कोई question है, just raise your hand and then we can discuss on it. So I'll stop my screen share now. किसी को कुछ भी clarification वगैरह चाहिए होगा, so please. हाँ, किसी को कुछ questions है, so please आप अपना hand raise कर दीजिएगा. So can we add gold in my small cases portfolio? Yes, you can add basically anything जो कि NSE पे ट्रेड हो रहा है. तो जैसे गोल्ड आपको ऐड करना है तो आप गोल्ड ETF ऐड कर सकते हैं. जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक या ETF, वो आप आपके बास्केट में ऐड कर सकते हैं, चाहे आप आपका क्रिएटेड हो चाहे आप ऑलरेडी प्रोफेशनल बास्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. So सबसे पहले मिस्टर देवेंद्र का उनको अनम्यूट कर देते हैं. मिस्टर देवेंद्र, कैन यू हियर मी? Yes, sir. How are you, sir? I hope. Fine, sir. Please tell me how can I help you? Sir, it is a ready-made portfolio, is it? Correct. Okay. Suppose I invest 1 lakh in dividend companies. जी बिल्कुल. Okay. Before investing, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या मेरी वेटेज क्या है किस स्टॉक में? It will be shown. Sure. I'll just show you. जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, मैं जैसे अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? Yes, sir. जी, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, जैसे मैंने यहाँ पे डाला डिविडेंड, तो जो भी डिविडेंड रिलेटेड है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स. सो एग्जांपल के लिए ये स्टॉक्स एंड वेट्स हैं, तो आपको दिख जाएगा 18,400 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं. एशियन पेंट्स में 5% आपका वेटेज है. गोदरेज में आपका 6.5% मतलब 5.6% वेटेज है. Okay. It is visible. It is visible. You get all details. This is very transparent. कि आप जैसे आप इसको बाय भी करेंगे आपको दिखेगा, अच्छा ये प्राइस पे जाएगा, ये वेट है, इतना क्वांटिटी आपको आएगा. Okay. Sir, what is the meaning of the basket exit? Sorry, basket exit. Basket exit means you have to sold all the basket. हाँ, आपको बास्केट एग्जिट स्मॉल केस मतलब आपको बास्केट एग्जिट करना चाहते हैं. एग्जिट करना है. एग्जिट, हाँ, कि आपको उसको सारे स्टॉक्स बेचना है. आप उसको कंप्लीटली भी बेच सकते हैं, पार्शियली भी बेच सकते हैं, या मैनेज करके सिर्फ आपको अगर 1-2 स्टॉक्स ही ऐड या रिमूव करना है वो भी आप मैनेज करके कर सकते हैं. वो मैनेज कर सकते हैं. अगर ऐसा लगता है कि ये 2 स्टॉक ठीक नहीं लग रहे तो उन्हें बेच सकते हैं सेपरेटली. तो जैसे ये किया, जैसे मैंने ये बाय किया अभी, तो ये बास्केट आपका बाय हो गया. आप इन्वेस्टमेंट में गए, आप बास्केट में गए और मैनेज में गए. आपको मान लीजिए ये गोदरेज नहीं पसंद आ रहा है, आपको नहीं चाहिए, आप मूव किए, तो आपको 1,300 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, या वापस क्रेडिट हो गए. रिलायंस डालना है, आपने रिलायंस ऐड किया या रिलायंस ऑलरेडी इसमें है. मैं एग्जांपल के लिए यस बैंक डाल देता हूँ एक बार. ठीक है, इट्स ओके. तो आपको ये नेट चेंज जो है तो प्लस माइनस करके आप इसको कंफर्म करिए एंड मैनेज. दैट्स इट. Thank you. Sir, one more question. Is it intraday available in that? Intraday as in you can, this is a delivery product, but जो आप जैसे डिलीवरी में ले रहे हैं ना, आप इसको, आपका ऑर्डर डिलीवरी में जाएगा, बट आप इसको इंट्राडे में ले सकते हैं. बट आप क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स लेंगे, सो मे बी आपको उसमें फायदा हो या नहीं, बट आप कर सकते हैं. बट इट इज नॉट रिकमेंडेड. जो नॉर्मल ब्रोकरेज है इंट्राडे का वो आपको लगेगा, पर वो लगेगा. इट इज अवेलेबल. हाँ, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है. जितने भी स्टॉक्स है उसका नॉर्मल ब्रोकरेज आपको लगेगा. Thank you, sir. Thank you so much. Mr. Niladri, एक मिनट. Hello. Niladri Sekhar Khan, can you hear me?
हेलो, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। जस्ट इन केस नहीं आए सो आप उसमें फिर से मुझे आप पिंग कर सकते हैं। देवी प्रसाद मुखर्जी, I'll ask you to unmute. Just unmute yourself, please. Hello. Hello. Yes, sir. Please Yes. tell me. How can I help you? Can you hear me? Yes, sir. Please tell me. Actually, I want to know that what is the interval when I can change the basket? Suppose I am saying that in 6 months my basket valuation from 10,000 to 11,000. Okay. So if I want to change the basket, so can I do that? Yes, sir. You can do that. As I told you, you can manage your basket. Abhi, if you would have seen just 2 minutes ago, I told Mr. Devendra how to manage your basket. Or maybe if you want to exit partially also, you can do that. So just give me one moment. I'll share my screen and show you again. Yeah. So is this visible? Yeah, visible. So say we have a feature called invest more, where you can invest much more money in it. So say I want to invest 25,000 in it. I want to invest more. This is apart from SIP. So आपको अगर if you want to invest money at one point, so you can use the invest more feature and do it. So this is done. Now say for example, your small case has given you certain profit. You want to exit that. Say as you said, you had say invested how much here? Say 37,000. Your basket is now 40,000. You want to exit 3,000 rupees just for example. So what you can do is click on exit small case. You don't want to exit the basket fully. So click on partial and say you can exit 3,000 rupees from here. What this will do is this will automatically calculate all the weights. It's not like you want to share 1 or 2 shares. It will calculate the weight and ensure that whatever you had invested earlier, the weights remain the same. You confirm and exit. So it's not like you are selling 1 or 2 shares. You can do this at a normal level, or you can manage your small case if you want to buy or sell a particular share like this. Yes. Now, suppose I now the pharma is performing well. Okay. So I have invested in pharma. Okay. So after 6 months, this it is the chemical time. So super specialty chemical. So I can withdraw the full amount from the pharma and put it into the super specialty chemical. Yes, if you want, you can do that, or you can buy pharma also and specialty also. Just for example. Right. Or you can exit no matter. There is, as I said, there is no lock-in period ever. You can buy anytime, you can sell anytime in the market class. Okay. Yes. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Mr. Tane asking, sir, मेरा ट्रस्ट लाइन में अकाउंट है, स्मॉल केस में कैसे करेंगे? So जैसे मैंने आपको बताया, यह बहुत इजीली कर सकते हैं. यहाँ पे जब आप ट्रस्ट लाइन की आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आप स्मॉल केसेस पे क्लिक कर सकते हैं, या आप सर्विसेज में जाइए, वेल्थ मैनेजमेंट पे क्लिक करिए, आपको स्मॉल केसेस दिखेंगे. इस पे क्लिक करिए, आपको आपका लॉगिन डिटेल्स पूछेंगे, बस आप वो डालिए ना, आप स्मॉल केसेस पे लॉगिन हो जाएंगे. उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, कोई नया अकाउंट नहीं, कुछ नहीं. आप अपने ट्रस्ट लाइन की क्रेडेंशियल से आप लॉगिन कर सकते हैं. मिस्टर देवेंद्र इज आस्किंग समथिंग. यस मिस्टर देवेंद्र. No sir, it's okay. My question is okay. Okay, thank you. So किसी को और कुछ कोई क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन है? If not, say then we can close this off. Someone wants to ask anything? किसी का कुछ feedback है, questions हैं, clarification चाहिए? So what you can basically do is you can always reach out to us at helpdesk@trustline.in, or you can also reach out to us at help@smallcase.com. So I believe no one has any questions. So do check it out whenever you are free. And in case you have any feedback, do let us know. Thank you so much for joining, guys. I hope this was helpful for you.
And maybe if you want to connect, you can directly reach out to me on mail. I'll type my email ID also. I've written my email ID as well in case you want to reach out to me. Thank you so much, guys. It was really nice being here, and I hope कि आपको यहाँ से थोड़ा बहुत at least information मिला है, and maybe you can check out small cases and start your investment very soon. Mr. Sukhbir Singh, please send video of the webinar. Definitely, we will share this webinar. आप इसको कुछ टाइम बाद, जैसे हमारा ट्रस्टलाइन का जो YouTube चैनल है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, या आपको ट्रस्टलाइन से ये वीडियो कहीं ना कहीं से आपको आ जाएगा. Please do not worry. Thank you so much, guys. Bye. Have a nice day and take care. Be safe. Thank you so much. Bye.